Hello students, how are you? I hope that all of you are fine and enjoying a lot by reading at your home. So, in the series of enhancing your knowledge, we welcome you in our class of English. So, here we are going to learn our chapter number 4, and chapter number 4 is Our Truly Beautiful Mind. A truly beautiful mind. So, in our truly beautiful mind, we learn about Albert Einstein. The chapter is itself written by Albert Einstein. Actually, it is what it is a little bit part of. It is an extract of his full biography. So the chapter is A Truly Beautiful Mind. Here the beautiful mind of a scientist is shown that how it can be beautiful. Actually the mind of a scientist is called very brilliant, very intelligent. But now I am saying that it's beautiful. It's beautiful in a way that it always think about the well-being of human. ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि सबकी भलाई के लिए सोचता है, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, नोट अबाउट द डिस्ट्रक्शन. दैट्स वाई वी कॉल अ साइंटिस्ट माइंड वेरी ब्यूटिफुल. So in summary, we learned something about Albert Einstein's life, his birth, his background, also his achievements, the areas where he lacked much, how he participated in scientific invention, that he invented very important theory of relativity. Later on his theories also proved very helpful in the revolutionizing field of physics. And also we came to learn that when atom bomb theory has been searched, then he warned government earlier about its disastrous result. In this way he also helped by joining the politics to the welfare of human being, and also he believed in democracy. That's why his mind is always called very beautiful. Now let's learn the theme of the chapter. So here the brief life sketch and achievement of our great genius scientist Albert Einstein is given. Actually his life, his achievements reveals का मतलब shows. क्या reveal करते हैं, हमें दिखाते हैं. ठीक है, reveal का मतलब क्या होता है, shows करना होता है. Okay, it means shows. These achievements shows that extraordinary personalities with exceptional intellectual capabilities are not necessarily noticed during the early year of their life. वो कहते हैं जितनी भी इंटेलिजेंट माइंड होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी होती है, जिसमें एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होती हैं, असाधारण बुद्धि होती है, शुरू में उन लोगों को कोई नहीं पहचानता. ठीक है, अर्ली ईयर्स में लोग उनको नॉर्मल ही मानते हैं. The author focuses on two aspects of Einstein personality. यानी कि चैप्टर बताने का हमारा मेन मकसद क्या है कि यहाँ हमारे राइटर ने, हमारे ऑथर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के दो एक्सपेक्ट पे कुछ ज़्यादा ही जोर डाला है. वो दोनों एक्सपेक्ट कौन से हैं? एक तो एज अ साइंटिस्ट है, ठीक है, आपको अच्छे से बताएंगे कि वो एस्पेक्ट्स कौन से हैं. एक तो है एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, और दूसरा है एज अ ह्यूमन बीइंग. एज ए साइंटिस्ट उसने कौन सी मार्वेलियस डिस्कवरीज की हैं, ठीक है, किस तरह से उसने साइंटिफिक फील्ड में रेवोल्यूशन क्रिएट के क्रांति ला दी है. और दूसरी तरफ एज अ ह्यूमन बीइंग उसने ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किया, हाउ ही वर्क टुवर्ड्स द पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. यानी कि हियर वी कम टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर अबाउट द टू थिंग्स ऑफ अ साइंटिस्ट. एज अ साइंटिस्ट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट as he discovered many marvelous discoveries. On the other hand, he is a very good human being as he always worked for the peace and democracy in the world. That's why we are saying that his mind is very beautiful. So the title is accurate. No, there is no need to write this title. Okay, only I am going to understand this one, that the title of this biographical sketch is A Truly Beautiful Mind. इट्स वेरी अप्रोप्रिएट, मतलब ये बिल्कुल ठीक है. एज इट इनकम्पासेस बोथ द इंटेलिजेंस ऑफ आइंस्टाइन एंड इज ह्यूमनिस्टिक टेंडेंसीज. क्योंकि इनकम्पासेस मतलब इंक्लूड करता है आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस यानी कि उसके एज अ साइंटिस्ट होने को, दूसरी तरफ उसकी ह्यूमनिस्टिक टेंडेंसीज को, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग होने को भी दिखाता है. एज अ जीनियस ही मेड एन इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस. क्योंकि वो जीनियस है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है, एज अ गुड इंटेलिजेंट मैन ही मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन. कैसे? इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस बाय स्टार्टलिंग थियरीज.
ठीक है। एक चौंकाने वाली थियरी प्रेजेंट की है उसने, किसके बारे में, रिलेटिविटी के बारे में दी है, विच इज़ रिलेटेड टू ग्रेविशनल पावर, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सिद्ध होती है जब सोलर इक्लिप्स होता है। दूसरी तरफ एज ए ह्यूमन बीइंग ही प्रीच फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ वो सिर्फ एक इंटेलिजेंट इंसान नहीं है बल्कि एक गुड ह्यूमन बीइंग भी है। कैसे, हमेशा वो पीस और डेमोक्रेसी के लिए ही उपदेश देता है। प्रीच का मतलब क्या होता है, टीचिंग्स हैं, उसकी टीचिंग्स है, उसकी शिक्षाएं हैं, उसने जो लेक्चर दिए हैं वो किसके लिए हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, उसकी पीस और डेमोक्रेसी के लिए दिए हैं। Thus his mind was really beautiful and teeming with new ideas and human concern, इसलिए हम कह सकते हैं उसका दिमाग कैसा है, सच में ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, उसके दिमाग में कैसे आइडिया टीम करते हैं, कैसे आइडियाज़ चमकते रहते हैं, न्यू आइडियाज़ चमकते रहते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए वो हमेशा कंसर्न करते हैं। इसीलिए हमारा जो टाइटल है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। क्या मैसेज देता है ये चैप्टर हमें? Actually, this account of his life and personality of the famous scientist Einstein gives us the message that a beautiful mind possesses not only innovative ideas but also makes sincere efforts to use these ideas for the well-being or welfare of humankind। बिल्कुल हमारा ये जो मैसेज है वो हमारी थीम से मिलता जुलता है। तो आप मैसेज और थीम में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं इजीली। ओके, तो हमें क्या आइडिया देते हैं, आइंस्टाइन की लाइफ और पर्सनालिटी के थ्रू हमें मैसेज दिया गया है दैट अ ब्यूटीफुल माइंड contains not only innovative ideas but also it has the efforts to use those ideas for the well-being of human being। ठीक है, केवल उसमें अच्छे इनोवेटिव नए आइडियाज़ नहीं होती बल्कि उन आइडियाज़ को किस तरह से इंसान के लिए यूज़ करना है ये सब भी दिया हुआ होता है। सिंस साइंस शुड बी सॉलली डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, साइंस का एक ही मकसद होना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए सारी दुनिया की शांति को, लोगों की प्रोस्पेरिटी को। ठीक है, प्रोस्पेरिटी मतलब लोगों के उन्नति को। इफ़ यूज़ फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज़, अगर साइंस डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ की जाएगी, अगर हम एटम बम बनाते रहेंगे डिस्ट्रक्शन के लिए तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। इन दिस वे ओनली द साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज कैन रीक हैवोक ऑन अर्थ, तो धरती पर वो विनाश का कारण ही बनेंगी। रीक हैवोक ऑन अर्थ का मतलब क्या होता है, तांडव मचाना होता है। ठीक है, सो नाउ देर आर द सम ऑफ द वर्ड मीनिंग्स गिवन टू यू लाइक जीनियस, अ वेरी ग्रेट नेचुरल एबिलिटी। इसका मतलब होता है रीजन्स, क्या होता है, सॉरी रेंज, REIGNS, रेंज का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी मतलब प्रबलता, कितनी ज़्यादा क्या है उसके अंदर प्रायोरिटी है उसके अंदर। उसके बाद है जर्नल्स, मैगजीन होती हैं। कॉस्मस क्या होता है, होल यूनिवर्स होता है। ट्रांसफॉर्म जो कन्वर्ट हो जाते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं, सेम मीनिंग वाले होते हैं। इंडिकेशन कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ सिम्टम बताते हैं हमें। डेस्टाइंड क्या होते हैं, फिक्स रूल होते हैं हमारे, कॉन्ट्ररी अपोजिट में होते हैं। फ्रीक का मतलब अबनॉर्मल होता है। ठीक है, फ्रीक क्या होता है, अबनॉर्मल। अटर्ड का मतलब स्पीक इन ए वेरी लो वॉइस। प्रोफेशन कोई भी करियर या बिजनेस होता है। अमाचोर्स कौन होते हैं, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो करेंगे, ठीक है, वो अमाचोर्स। जैसे अगर आप तारे यानी कि अगर आप स्टार गेजिंग करते हो तो आप एक अमाचोर हो, आप प्रोफेशनल नहीं हो। प्रोफेशन जो अपने प्रोफेशन के लिए करते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। दूसरे जो सिर्फ अपने शौक के लिए कोई काम करते हैं वो क्या होते हैं, अमाचोर्स होते हैं। डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट। मेंटेनिंग टू कीप समथिंग। इंडिकेट अभी बताया था, सिम्टम होता है। ठीक है, उसके बाद रेजिमेंटेशन होता है यानी कि डिसिप्लिन रखना होता है, रेजिमेंटेशन। क्लैश का मतलब गॉट इन डिस्प्यूट होता है। स्टिफर्ड मतलब दम घुटना, सफोकेटेड होता है। प्रोलोंग्ड मतलब बहुत लंबा होता है, विच इज़ वेरी लेंदी। लिबरल क्या होता है, दैट अंडरस्टैंड्स अदर ओपिनियन, जो दूसरों की बातें समझता है, खुले विचारों वाला होता है। गिफ्टेड स्पेशल क्वालिटी होता है। अपील करना, किसी को खुश करना। डैशिंग बहुत उत्साह होना, स्प्रिंटेड होना। वॉलरस क्या होता है, सी हॉर्स होता है, एक तरह की ये स्पीसीज़ होती है सी हॉर्स की। सर्ब क्या होते हैं, सिटीजन ऑफ सर्बिया को सर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एले क्या होता है, कंपेनियन होता है, एसोसिएट होता है। फिलिस्टीनीज कौन होते हैं, पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर एंड म्यूज़िक। फिलिस्टाइंस वो लोग होते हैं जो कि आर्ट लिटरेचर म्यूज़िक को पसंद नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ साइंस में रुचि रखते हैं। कॉन्स्टेंटली जो लगातार चलता रहता है, कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। ऑड्स क्या होता है, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज होता है। अफेक्शन क्या होता है, लव होता है। टेंडरनेस वेरी सॉफ्टनेस होता है। रिलेटिविटी क्या होता है, कनेक्टिविटी, क्या कनेक्शन
कनेक्शन है उसमें, इसने थियरी दी है ना रिलेटिविटी की, उसका मतलब कनेक्शन थियरी दी है। क्या कनेक्शन है? ग्रेविटेशनल पावर में। सिक्योर दैट इज एक्वायर्ड, एक्सपर्ट बाय स्किलफुल पर्सन होते हैं। पेटेंट कराना, किसी डॉक्यूमेंट को कोई राइट देना, गिविंग डॉक्यूमेंट राइट। असेसिंग, असेसिंग क्या होता है? इवेल्युएशन करना, उसका मूल्यांकन करना। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, बिल्कुल उसी चीज़ से रिलेटेड है और कोई चीज़ से रिलेटेड नहीं है। परफेक्ट, जो बिल्कुल कंप्लीट है। एक्यूरेट, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। अनरेवलिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग टू फेल, जो शुरू ही नहीं होता, असफल होना होता है अनरेवलिंग। बॉदर्ड, बॉदर्ड होता है डिस्टर्ब हो जाना। पुट ऑफ, किसी चीज़ को दूसरे समय पे टाल देना होता है। फॉल्टर्ड मतलब बिकेम वीक, कमज़ोर पड़ जाना। डिवोर्स्ड, पार्टेड अवे, किसी से अलग हो जाना। कोइंसिडेड का मतलब क्या होता है? बाय चांस। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन करना। एक्लिप्सिस क्या होता है? पुटिंग ऑफ ए शेडो ऑन द सन और मून, सन और मून पे कोई परछाई आना होता है, ग्रहण लगना। डिफ्लेक्टेड क्या होता है? जो डायरेक्शन हो जाती हैं चेंज हो जाती हैं। प्रोक्लेम्ड क्या होता है? अनाउंस करना। लॉर्डेड का मतलब प्रेज करना। नाजीज, नाजीज क्या होती हैं? एक पॉलिटिकल ग्रुप था जर्मनी में जिसको रुडोल्फ हिटलर लीड करता था। कोलीग्स क्या होते हैं? को वर्कर होते हैं। टेरिटरी क्या होते हैं? एक एरिया को ही हम टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कैरेक्टर के बारे में। बिकॉज बेटा इट्स अ स्टोरी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, दैट्स ऑल वी हैव, दैट्स वाई वी हैव ओनली वन कैरेक्टर एंड हु इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ पे हम सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन का कैरेक्टर पढ़ेंगे, लिखेंगे। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम एल्बर्ट आइंस्टाइन का कैरेक्टर ही लिख देंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल जीनियस एंड अ पीस लविंग ह्यूमन बीइंग विद लिबरल आइडियाज़। दो तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया। कैसे? एक तो ग्रेट इंटेलेक्चुअल जीनियस है, ठीक है, ग्रेट इंटेलेक्चुअल जीनियस है। दूसरा पीस लविंग ह्यूमन बीइंग है जिसके आइडियाज़ कैसे हैं? वेरी लिबरल आइडिया है। तो दो तरीके से इंटेलेक्चुअल एज ए साइंस की फील्ड में जो किया है, दूसरी तरफ से वो है पीस लविंग पर्सन है, एज ए ह्यूमन बीइंग उसने क्या क्या किया है। तो इन दो आस्पेक्ट को दिखाया गया है। तो इंटेलेक्चुअल के रूप में हम बता देंगे क्या क्या किया है। एज एन इंटेलेक्चुअल ही क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, पार्टिकुलरली फिजिक्स के लिए उसने किया है, ठीक है। मैंने बताया ना, दोनों ही तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि जैसे साइंस के फील्ड में इंटेलेक्चुअल होने के लिए उसने क्या किया है। ही मेड रिवोल्यूशनरी थियोरीज रिलेटेड टू रिलेटिविटी फॉर द फील्ड ऑफ साइंस, बेसिकली फॉर फिजिक्स, एंड एज इट्स माई वर्ड इज रॉन्ग, ओके। एज ए ह्यूमन बींग ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, लिबर्टी एंड पीस। तीनों मैसेज वो दे रहा है, प्यार का, स्वतंत्रता का और शांति का। लव, लिबर्टी एंड पीस के मैसेज दे रहा है एज ए ह्यूमन बींग। तो दोनों एस्पेक्ट से हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस कैरेक्टर को पढ़ा है। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अब सबसे पहले उसके चाइल्डहुड में क्या क्या होता है। एक्चुअली इन चाइल्डहुड एल्बर्ट आइंस्टाइन डिडंट शो एनी ट्रेसेस ऑफ इंटेलिजेंस, कोई इंटेलिजेंस का नामो निशान तक नहीं था। ही वॉज अ स्लो चाइल्ड हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी लेट, बल्कि वो एक स्लो बच्चा था जिसने बहुत लेट पढ़ना लिखना सीखा था, बोलना भी लेट सीखा था, 2.5 साल की एज में। इवन हिज मदर कंसिडर्ड हिम टू बी अ फ्रीक, फ्रीक का मतलब वेरी वीक, दिमागी रूप से कमज़ोर। उसकी माँ भी उसको क्या समझती थी? द चाइल्ड इज़ अ फ्रीक, कि चाइल्ड क्या है? दिमागी रूप से कमज़ोर है। हेडमास्टर स्कूल के उसको नेगेटिव ओपिनियन रखते थे, ठीक है, और क्या कहते थे? दैट आइंस्टाइन वुड नेवर अचीव सक्सेस इन करियर दैट ही वॉन्टेड टू अचीव, इफ़ ही वॉन्टेड टू अचीव, जो भी वो कुछ करना चाहता है, दैट ही ची, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने सिर्फ ये लिखना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वुड नेवर अचीव सक्सेस इन एनी करियर ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में कभी कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा। हेडमास्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया था। हाउएवर आइंस्टाइन प्रूव टू बी अ गुड स्टूडेंट एज ही हैड हिज इंटरेस्ट एंड स्किल्स इन मैथमेटिक्स। वो कहता 30, ये इसको आइंस्टाइन है एक्चुअली, ठीक है। सो यू नीडेंट टू राइट दिस वर्ड ऑल्सो, 13 वाला भी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइंस्टाइन एक अच्छा स्टूडेंट साबित हुआ, क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट, उसकी स्किल थी मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में, और उसने सभी सब्जेक्ट में हालांकि मार्क्स अच्छे लिए, लेकिन कभी भी उनके लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया, हमेशा उसके लिए बोरिंग साबित हुआ, इसीलिए हेडमास्टर उसको कमज़ोर मानते थे। आइंस्टाइन लव फॉर फ्रीडम डेटेड बैक टू हिज स्कूल डेज, भाई आज़ादी को वो स्कूल डेज से ही पसंद करता था। कैसी? ही फेल्ट सफोकेटेड, घुटन महसूस होती थी मुनीक के स्कूल में। क्यों? मुनीक इज़ अ प्लेस,
ये क्या है, जगह है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि मुनीक नामक जगह पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता था। ही ऑप्टेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड इन स्कूल विद अ लिबरल एनवायरनमेंट। इसकी बजाय वो कहाँ पढ़ना चाहता था? स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहता था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिबरल एनवायरनमेंट था। इसीलिए उसने जर्मनी को भी छोड़ दिया था फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि जब डिक्टोरियल मतलब तानाशाह नाजीज, हिटलर आ चुका था ना, व्हेन डिक्टोरियल नाजीज टूक ओवर बिकॉज ही वाज एवर्स टू एवरी टाइप ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, उसने जर्मनी को, अपने देश को भी छोड़ दिया और अमेरिका चला गया था। क्यों? क्योंकि तब डिक्टेटरशिप, तानाशाही, हिटलर वहाँ पे आ गया था, नाजी लोग आ गए थे और वो बिल्कुल खिलाफ था। एवर्स का मतलब क्या था? अपोज करता था, विरोध करता था। वो अपोज करता था किसका? किसी भी तरह की अथॉरिटी का, कि कोई हुक्म चलाए मुझ पे, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। मैं फ्री होके काम करना चाहता हूँ, मैं फ्री होके पढ़ना और पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है। दो, हालांकि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, ही वॉज ऑल्सो लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, उसको बेशक साइंटिस्ट था लेकिन आर्ट और लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट एनी फिलिस्टीनिज़म। फिलिस्टीनिज़म का मतलब आपको मैंने वर्ड मीनिंग में भी बताया था, मतलब जो इग्नोर करता है, इग्नोर और शो एनी हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? नफरत, हेट। ठीक है, कोई नफरत करता है आर्ट और कल्चर से, इग्नोर करता है आर्ट और कल्चर को, वो क्या होता है? फिलिस्टीन होता है। ही फेल इन लव विद अ सर्बियन गर्ल मिलेविया मैरिक। उसे एक सर्बियन लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम मिलेविया मैरिक है। बिकॉज शी हैड सिमिलर आइडियाज़ अबाउट आर्ट। क्यों? क्योंकि उसी के जैसा सोचती थी, उसी की जैसी साइंटिस्ट थी वो, तो इसलिए उससे शादी भी कर लेता है। एज ए साइंटिस्ट हिज थियरीज ऑफ रिलेटिविटी एंड ग्रेटिविटी क्रिएटेड अ स्टिर इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। क्योंकि वो साइंटिस्ट था, उसने बहुत अच्छी अच्छी थियरीज दी हैं। थियरीज रिलेटेड टू रिलेटिविटी और ग्रेटिविटी, ये दोनों ही थियरीज ने आपस में मिलकर के स्टिर का मतलब एक क्रांति ला दी, हलचल मचा दी साइंस के वर्ल्ड में, और इसीलिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उसके दूसरे बहुत सारे ऑनर यानी कि सम्मान मिले हैं और अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ हासिल किया है। एक्चुअली ही इज़ नॉट ओनली ए गुड साइंटिस्ट बट ही इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड लवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मैन काइंड के लिए भी उसका लव था। ही वॉन्टेड अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो सारे संसार के लिए ही गवर्नमेंट बनाना चाहता था। ही वॉज प्रटर्ब्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ साइंस। प्रटर्ब्ड का मतलब उसे परेशान किया जाता, वो चिंतित हो जाता था जब साइंस का यूज़ करते थे डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए। जैसे एटम बम का यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम हिरोशिमा और नागासाकी में डालने के लिए। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी। दैट्स वाई ही लेफ्ट द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड देन ज्वाइंड द पॉलिटिक्स, वर्किंग हीज होल लाइफ फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी। सारी ही ज़िंदगी वो क्या करता रहा? शांति का, भाईचारे का, लोकतंत्र का मैसेज पढ़ाता रहा। उसने फिर ये साइंटिफिक इन्वेंशन छोड़ दी थी। Thus Einstein traits as a scientific genius and a peace-loving human being with a deep love for freedom are amply highlighted in this biographical account. तो इस अकाउंट में, इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर आइंस्टाइन के ट्रेट, आइंस्टाइन के कौन कौन से ट्रेट? एक तो साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक जीनियस वाला ट्रेट वो दिखाया गया। दूसरा पीस लविंग ह्यूमन बीइंग वाला, दो ट्रेट दिखाया गया आपको, मैं तब से बोल रही हूँ। एक तो आपको साइंटिफिक जीनियस वाला ट्रेट पार्ट दिखाया गया है, दूसरा आपको पीस लविंग ह्यूमन बीइंग वाला पार्ट दिखाया गया है। हु लव्स फ्रीडम, ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर एम्पली का मतलब इन अ लोड ऑफ अमाउंट, ठीक है, इन अबांडन, इट इज़ हाईलाइट इन दिस चैप्टर। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अच्छे से दिखाई गई हैं। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, लेटर ऑन वी विल डू सम ऑफ द क्वेश्चन। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग अबाउट दैट. If you have the problem then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice